सो एज यू कैन सी तुम्हें जैम कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू गो टू गूगल, और गूगल में जाके इन गूगल विंडो यू आर गोइंग टू टाइप जैम कंट्रोल पैनल। ओके, जैम डाउनलोड। अभी इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हारे विंडोज 7 32 बिट है या विंडोज 10 64 बिट है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू आर गोइंग टू इंस्टॉल दैट 32 बिट। जैसे यू नो दैट इन अवर लैब सी जो कॉर्नर का पीसी है वो 32 बिट वाला है, तो वहाँ पे हमने जैम 32 बिट वाला इंस्टॉल किया है, एंड रेस्ट ऑफ द ऑल पीसीज आर गोइंग टू हैव द 64 बिट वाला जैम। सो यू नीड टू प्रेस एंटर। Official site. Always org is the official site to download any software. So तुम क्या करोगे, here or here you can click anywhere and then you can download your XAMPP. If you want I can show you. So here you can check that XAMPP for Windows 7.3 7.4 and 8 ऐसे लिखा है यहाँ पे। 8.0.2 ये जो it will be compatible with all the rest of the versions also, so no need to worry about it. सिर्फ तुम्हें क्या देखना है that 64 बिट वाला कोई भी एक ले लो वर्जन that you can download from here. So as you can see 155 MB का सॉफ्टवेयर है and it will be installed. Windows 10 को compatible है, no issue with it. तो जैम का तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो हियर यू कैन सी दिस इज फॉर मैक ओएस, दिस इज फॉर लिनक्स एंड दिस इज फॉर विंडोज. तो तुम्हें पहले ही आके यहाँ पे क्लिक कर दिया तो भी चलेगा. और बेसिक वाला वर्जन हमें मोर देन सफिशिएंट है. सिर्फ एक चीज़, विंडोज 8 अगर किसी के पीसी में है, आई नो दैट यू आर इन टीआई सो यू नो दैट लॉट्स ऑफ बग्स आर देयर इन विंडोज 8, तो किसी के पास तो होगा नहीं वो, लेकिन अगर है तो सिर्फ ये लास्ट वाला डाउनलोड करोगे. या फिर दिस विंडोज 7.3 एंड 7.4 बोथ आर कंपैटिबल विद विंडोज 10. तो तुम्हें ये डाउनलोड करना है 64 बिट का एंड 155 और 156 MB का वो डाउनलोड हो जाएगा जैम. एंड देन वंस इट विल बी डाउनलोडेड तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, इट्स गोइंग टू आस्क यू कि ये जब हम जैम इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं ना तो वो बोलता है कि इट्स गोइंग टू स्लो डाउन समथिंग. So do you want to continue the installation? You are going to click on yes, then click on OK, बाकी कुछ नहीं, and then setup will start. The XAMPP setup will start. Click on next. Once again you are going to require all these things. Actually हमें क्या लगेगा पता है, सिर्फ PHP my admin हमें लगने वाला है. Tomcat तो बाद में लेंगे. MySQL, so MySQL and Apache तो by default आ ही रहा है. So Apache, MySQL and PHP MyAdmin. These are the 3-4 things which we are going to require in order to run the practical SQL injection का practical और XSS का practical and cross site request forgery का practical, उसके लिए हमें लगेगा. Then click on next. It's going to ask you where you want to create the folder. So we are going to create it in C drive. So it will be like C and XAMPP. Click on next. Once again click on next. And are you ready to install it? Then click on yes, means next, and it will start unpacking all the files in time, and then you are going to click on finish. XAMPP का इंस्टॉलेशन इतना ही है, XAMPP कंट्रोल पैनल. ओके, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि XAMPP इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ? सिंपली क्लिक ऑन दिस विंडोज बटन जो स्टार्ट का बटन रहता है एंड देन टाइप XAMPP. सो इट्स लाइक XAMPP. On my PC it's going to take some time, but once you will press it, it's going to create its shortcut and it will be there in your start window. तो दिखाई देगा. It's an orange color logo. So orange color का logo आ जाएगा and XAMPP control panel will be installed. You are going to run it as an administrator. तो हम इसे कैसे रन करेंगे? As an administrator करके रन करेंगे. फिर वो it's going to ask you permission कि do you want to run it or not. तो yes करके छोड़ देना है and then it will open this XAMPP. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है how to install how to first download XAMPP and how to install it?
let me ask you, and then you raise your hand so that I will come to know. So till this point, is it clear to all of you? Just raise your hand if it is clear. Good. Very good. सो हमने देखा XAMPP डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, एंड हाउ यू आर एबल टू सी इट्स लोगो, हाउ टू ओपन इट, दैट्स इट। अभी हम क्या कर रहे हैं, वी नीड टू डू सम सेटिंग इन XAMPP। तो देर आर मेनी वेज टू चेंज द पोर्ट। हमें क्या करना पड़ेगा, अपाचे का जो पोर्ट है दैट वी आर गोइंग टू चेंज। ओके, वी आर गोइंग टू चेंज इट फ्रॉम 8080, वी आर गोइंग टू चेंज इट टू 80। हाउ टू डू इट, देर आर टू वेज टू डू इट। आइदर यू कैन ओपन द कॉन्फिग फाइल फ्रॉम विंडोज एक्सप्लोरर, मतलब अपना येलो कलर का फोल्डर। So if you want, you can go inside this path. Path देखो क्या है, C:XAMPP. So once your XAMPP is installed, उसके बाद में तुम्हें ये फोल्डर दिखाई देगा. So it is like C XAMPP htdocs dvwa. Now ये dvwa हमें डाउनलोड करना है. So अभी हमें जाना पड़ेगा dvwa के डाउनलोड पे. मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था, but once again I will show it to you that how to download dvwa and from where you will get it. So here you are going to write down dvwa download, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है 32 bit and 64 bit. See the official site, it's dvwa.co.uk. तो तुम्हें इस साइट पे जाना है, and once you will reach over there, just scroll down the page, and once you will scroll down, तो ये जो सबसे पहले वाला बटन दिखाई दे रहा है डाउनलोड, click on it. So once you will click on it, you will get one zip file dvwa master. उसका नाम रहेगा कैपिटल में dvwa -master.zip. उसको तुम्हें अनजिप करना है, तो एक फोल्डर बनेगा dvwa master नाम का, उसको तुम्हें रीनेम करना है, और रीनेम करके उसके फोल्डर को क्या नाम देना है, ये छोटा वाला नाम देना है. So here you are able to see dvwa 4.91 MB का ये फाइल फोल्डर है. तो ऐसा वो जो मास्टर फोल्डर बनेगा उसके बजाय उसको रीनेम करना है एंड चेंज इट टू dvwa, क्योंकि हम PHP में वी आर ट्राइंग टू एक्सेस दिस फोल्डर विद दिस नेम. जिस नेम से एक्सेस करना चाहते हो उस नाम वो फोल्डर को दे दो, दैट्स इट. तो dvwa हमने नाम लिखा ना, तो तुम्हारा XAMPP इंस्टॉल हुआ, dvwa डाउनलोड हुआ, dvwa को अनजिप करके तुमने इस फोल्डर में रख दिया. देखो फोल्डर का कौन सा वाला है, C XAMPP htdocs. और अभी इन दिस dvwa यू विल फाइंड दिस config. ये जो config की फाइल है इसका हम थोड़ा सा सेटिंग चेंज करने वाले हैं. क्यों, क्योंकि config.inc.php.distributable फाइल यू विल गेट. हाँ, ये .php उसके बाद में और एक एक्सटेंशन रहेगा .dist फॉर डिस्ट्रीब्यूटेबल. अगर तुम फाइल वैसे के वैसे ही रखोगे, इट्स नॉट गोइंग टू अलाउ यू बिकॉज वो लीगल नहीं है. वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस कॉन्फिग फाइल ओनली फॉर लर्निंग पर्पज. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू चेंज द नेम, और उसका जो dist का एक्सटेंशन है वो हम हटा देंगे. तो पहले तुम्हारी अगर फाइल तुम्हें देखनी है तो इट विल बी लाइक inc.php.dist, और अभी हम उसको हटा देंगे. दैट्स इट. 1 मिनट चेंज कर दिया, दैट इज config.inc.php, dist हटा दो, दैट्स इट. तो फिर ये PHP की फाइल बनेगी दैट वी आर गोइंग टू ओपन. आइदर तुम ये फाइल यहाँ से ओपन कर सकते हो डबल क्लिक करके, या फिर you can go inside your XAMPP and यहाँ पे you can see सब चीजें स्टार्ट करने के लिए there is a start button, there is an admin button which is disabled, and यहाँ पे तुम्हें config बटन दिखेगा. तो हम क्या कर रहे हैं, अपाचे का पोर्ट चेंज कर रहे हैं. we are changing it from 8080 to 80. तो राइट क्लिक करो config पे. I am right clicking on it but it is not doing it. हाँ, तो and यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला जो दिख रहा है ना तुम्हें, apache std and httpd.config, यही वही फाइल है जो हम अभी चेंज करने वाले हैं. सो आई एम क्लिकिंग ऑन ओके.
तो वो फाइल जहाँ से वहां से ओपन करो, नहीं तो यहाँ से ओपन करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। अभी तुम्हें इसमें क्या, वॉचिंग एनीथिंग इज कंट्रोल एफ। ओके, सो व्हेंस यू विल प्रेस कंट्रोल एफ, तो वो मैंने पहले ही उसमें 8080 ढूंढा था, इसलिए आई एम एबल टू गेट इट। सो फाइंड व्हाट, फाइंड 80, क्योंकि इतनी बड़ी फाइल है, सो यू कैन स्क्रॉल डाउन एंड देन सर्च। सो क्लिक ऑन फाइंड नेक्स्ट एंड यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस लाइन। सो यहाँ पे देखो, एक लिसन करके एक तुम्हारे पास आईपी एड्रेस है, फेक वाला है बट ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी दैट लिसन तुम्हारे वो HTTP की डॉक में, कॉन्फ़िग के फाइल में यहाँ पे रहेगा 80, 80 रहेगा। ओके, एंड यू आर गोइंग टू चेंज इट टू 8080। हम उसका पोर्ट चेंज कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग इट टू 8080। मेक श्योर दैट ये तुम चेंज कर दोगे, दैट्स इट। बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। हियर यू कैन सी, इफ यू वांट यू कैन चेंज द लोकल होस्ट सर्वर आल्सो, यहाँ पे भी तुम्हें दिखाई देगा। सो यू कैन कीप इट लाइक 80, इससे फर्क नहीं पड़ता है कुछ। इतने ही दो ही चीजें हैं। तो सिर्फ तुम्हें एक याद रखना है, व्हाट इज दैट, कि वो जो ऊपर वाला था ना, अच्छा फिर से नहीं जाता, ओके, कंट्रोल एफ, नाउ आई विल स्क्रॉल डाउन। सो इन दिस लाइन, लिसन कहाँ पे लिसन करो, 8080 पे, क्योंकि वी नो कि अपाचे के लिए हम कौन सा फोल्डर कौन सा पोर्ट यूज करते हैं, 8080 फोल्डर। और तुम्हें क्या मिलेगा, 80 दिखाई देगा। इतना ही चेंज करना है, दैट्स इट। ये कॉन्फ़िग में तुमने चेंज किया, तो हमने क्या सेटिंग में चेंज किए, दो सेटिंग में चेंज किए। एक तो कॉन्फ़िग के फाइल का जो एक्सटेंशन था DIST, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल निकाल के सिर्फ उतना ही रखा, देन डबल क्लिक करके उसे ओपन करो, नहीं तो XAMPP में से ओपन करो, कॉन्फ़िग में जाके। और क्या करना है, वो लिसन करेगा टू द पोर्ट 80, और हमें उसे बताना है कि पोर्ट कौन सा वाला यूज करो, 8080, दैट्स इट। And once you will do it, you are all set and you are ready to use and perform the practical. अभी और थोड़े से चेंजेस क्या है, सो हियर यू कैन सी, वो XAMPP का सर्वर इंस्टॉल होने के बाद में एक बार तुम्हें पूछेगा विच लैंग्वेज यू वांट टू चूज, तो बट ऑब्वियसली हम इंग्लिश लैंग्वेज चूज करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन सेव। वही फिर से स्क्रीनशॉट है कि HTTP डॉक में हमने लिसन पोर्ट फ्रॉम 80, वी हैव चेंज इट टू 8080, एंड दिस इज दैट लाइन जहाँ पे हमने उसका पोर्ट चेंज किया। और फिर अपाचे स्टार्ट करना है। तुम्हें इतना श्योर करना है कि जब तुम स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो अपाचे स्टार्ट होना चाहिए। और देखो यहाँ पे आया अटेम्प्टिंग टू स्टार्ट अपाचे ऐप, स्टेटस चेंज डिटेक्टेड एंड इट्स रनिंग, तो ये आना चाहिए। ये अगर नहीं आता है, रेड कलर का कुछ सिग्नल आता है या फिर कुछ सिंटैक्स एरर आता है, तो तुम्हें थोड़ा सा R&D करना पड़ेगा कि क्या गलत हुआ। अभी दूसरा जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज MySQL। सो MySQL पे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो अभी पे देखो कि एज आई हैव नॉट इंस्टॉल्ड MySQL सेपरेटली ऑन माय लैपटॉप, दैट्स व्हाई नो पोर्ट इज गेटिंग टॉप। ये जो 3306 का जो पोर्ट है, तुम वो चेंज कर सकते हो फ्रॉम दिस नेट स्टैक एंड सर्विसेज, यू कैन चेंज इट। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी MySQL है तो वो भी 3306 ही पोर्ट यूज कर रहा है। अगर हमें XAMPP से उसको मैनेज करना है एंड यू आर नॉट एबल टू क्लिक ऑन द स्टार्ट, और वो नहीं स्टार्ट हो रहा है, एरर आ रहा है, तो चेंज दिस पोर्ट। इधर उधर से MySQL का पोर्ट चेंज करो। 3 पोर्ट्स आर वैलिड, 3306, 3307 या फिर 3308। इसमें से कोई भी एक पोर्ट तुम MySQL के लिए सेट कर सकते हो एंड इट विल बी अलाउड। हाँ, तो तुम्हें इतना देखना है अगर किसी के पीसी में MySQL ऑलरेडी है तो, अदरवाइज तुम्हें कुछ इशू नहीं आएगा। सो स्टार्ट करके हमने दोनों पोर्ट ओपन करके रखे। नाउ वी आर गोइंग टू गो टू द DBWA, और हमें उसके सिक्योरिटी के सेटिंग्स थोड़े चेंज करने हैं। सो वी हैव क्लिक्ड ऑन स्टार्ट, अपाचे एंड MySQL बोथ आर ओके। DBWA किया, रीनेम किया, और उसको फोल्डर बना के हमने CXAMPP htdocs में ऑलरेडी ही डाला था। नाउ यू कैन सी हियर डिस्ट्रीब्यूटेबल, वो हटा के रख दिया हमने। और एक चीज, ये ना DB पासवर्ड, मतलब जब भी हम DBWA का फोल्डर फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, इट्स गोइंग टू आस्क यू फॉर द यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो एक कॉम्प्लिकेटेड सा पासवर्ड यहाँ पे है अंडरस्कोर पासवर्ड करके तुम्हें दिखाई देगा इन दैट सेम फोल्डर तुम्हारे कॉन्फ़िग के फाइल में, तो वो निकाल दो एंड कीप इट ब्लैंक।
जब भी तुम ये ब्लैंक रखोगे देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू एंटर इट लाइक एडमिन एंड पासवर्ड. सी हियर, यहाँ पे था वो पहले मैंने निकाल दिया. सो इन दिस कॉन्फिग फाइल इटसेल्फ db_password यहाँ पे देखो एम्प्टी कर दिया है उसे. दैट यू आर गोइंग टू डू, एम्प्टी कर दो उसे. तो फिर एडमिन थ्रू तुम अंदर जा सकते हो, फिर या फिर एडमिन पासवर्ड थ्रू भी तुम अंदर जा सकते हो. जब तुम फर्स्ट टाइम DVWA तुम्हारे पीसी में इंस्टॉल करोगे तो तुम्हें ये वाली ब्लैंक विंडो दिखाई देगी, पहली वाली सेटअप. तो तुम्हें क्या करना है, ये वाली विंडो आएगी, लॉगिन की विंडो आएगी. तुम्हें सिर्फ क्या करना है, सेटअप DVWA पे क्लिक करना है और जो अभी हमने यूजर नेम दिया रूट एंड द पासवर्ड ब्लैंक वो ही सेट करके रखना है. एंड वहां पे यू विल बी एबल टू फाइंड सिक्योरिटी दिखता है. यहाँ से नहीं किया तो बाद में भी कर सकते हैं. एक सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखेगा, वो रहेगा इम्पॉसिबल. लेकिन अगर तुम सिक्योरिटी इम्पॉसिबल रखोगे तो तुम्हें कुछ भी प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करते आएंगे. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू चेंज इट टू लो. सिक्योरिटी क्या रखनी है, लो पे रखनी है. एंड देन क्लिक ऑन दिस बटन create/reset database. दैट्स इट. फिर तुम्हें ऐसा मैसेज आएगा कि डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड, यूजर्स टेबल वाज क्रिएटेड, ब्ला 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 थिंग, and setup successful, please log in. And once you will click on login तो तुम देखो बाय डिफॉल्ट वाला यूजर नेम रहता है एडमिन और बाय डिफॉल्ट वाला रहता है पासवर्ड इटसेल्फ. बोथ आर इन स्मॉल केसेस. तो इतना तुम्हें याद रखना है. एंड देन यू विल बी एबल टू सी दिस पेज. अगर तुम्हें सिक्योरिटी का टैब वहां पे नहीं दिखा देन फ्रॉम दिस पेज ऑल्सो यू कैन चेंज इट. लेट मी शो यू हाउ वी कैन चेंज इट. सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू ओपन दिस DVWA. हाउ आई कैन ओपन, इट्स लाइक http:// you can see http://localhost:8080/dvwa and I am pressing enter. अभी देखो मेरा पासवर्ड नहीं है. आई नो दैट स्टूडेंट ने ट्राई किया है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी का मेरे लैपटॉप पे, इसलिए आई ऑल्सो डोंट नो व्हाट इज द पासवर्ड राइट नाउ और मैं अभी चेंज नहीं कर रही हूँ उसे. आई एम क्लिकिंग ऑन लॉगिन. पता चल सकता है फ्रॉम PHP एडमिन व्हाट इज द पासवर्ड, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे. नाउ क्लिक ऑन लॉगिन. तो तुम्हें यह जब विंडो आएगी उसके पहले सेटअप की विंडो आएगी जहां से तुम सिक्योरिटी ऑफ करोगे, लो पे रखोगे, इम्पॉसिबल की जो है वो लो पे रखोगे एंड क्रिएट अ डेटाबेस. once you will create a database you will be redirected to this login page और तुम्हें लॉगिन में यूजर नेम में डालना है एडमिन स्मॉल केस में और पासवर्ड में डालना है पासवर्ड. इट इज ऑल्सो इन स्मॉल केस एंड यू विल बी redirected to this page where you can perform all the attacks. अगर तुम्हें सिक्योरिटी का पेज वहां से नहीं मिला कि इम्पॉसिबल टू लो का, तो तुम क्या कर सकते हो, हियर सी हियर DVWA सिक्योरिटी, उस पर क्लिक करो एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन सेट इट. तो यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट लो करके रखा है, वो इम्पॉसिबल रहता है. तो कौन से सिक्योरिटी के लेवल से, 4 लेवल है सिक्योरिटी के. एक है लो, मीडियम, हाई एंड इम्पॉसिबल. हमें क्या करना है, सिक्योरिटी लो करके रखो सो दैट हम सब अटैक उसके परफॉर्म कर पाए. तो मैंने सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे मेंशन हुआ कि सिक्योरिटी लेवल इज करेंटली लो. दैट्स इट. बाकी हमें PHP ID वगैरह कुछ नहीं लगता है. Now we are going to move to an SQL injection. तो अभी हम क्या करेंगे, SQL इंजेक्शन का एक अटैक परफॉर्म करके देखेंगे. both are there here also and here you will also find. अभी देखो मैं कर क्या रही हूँ. I am simply writing something and I am clicking on submit. User ID exists in the database. Okay, एक मिनट. So instead of blind वो अलग क्वेरी फायर करता है बैकग्राउंड में. गो फॉर SQL इंजेक्शन एंड एज यू कैन सी मैंने लिखा क्या था. सी हियर, इफ यू हैव बुक राइट इट डाउन. इफ यू हैव बुक राइट इट डाउन. देखो हम लिख क्या रहे हैं, और 1 = 1. वी आर सिंपली राइटिंग दिस, और 1 = 1. अभी और इज अ कैरेक्टर, 1 is a number, equal to is also a character and 1 is again a number. So ये जो और है, जो तुम्हारी स्ट्रिंग बन रही है दो कैरेक्टर को मिला के, उसको तुम्हें सिंगल कोट में कवर करना है. ओके, सो और को किसमें, इट्स अ स्ट्रिंग.
सो इंक्लूड इट इन सिंगल कोट. सिमिलरली इक्वल टू क्या है, इट इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, सो इंक्लूड इट इन अ सिंगल कोट. इतना ही करना है. तो इससे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अगर यू नो एसक्यूएल इंजेक्शंस, सो एसक्यूएल के छोटे छोटे क्वेरी तो तुम्हें पता है. अगर हैकर ने ऐसे किया, ये जो ऊपर वाला यूआरएल रहता है ना, यूआरएल, इसमें नाउ इट इज इनक्रिप्टेड, बट एचटीटीपी का ऐसा इनक्रिप्टेड नहीं था. यू विल बी एबल टू सी कि पूरा का पूरा एसक्यूएल का क्वेरी ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, यूजर नेम एंड द पासवर्ड एंड ऐसे. तो एंड के बाद में कुछ चीजें अभी मुझे तुमसे चाहिए. हाँ, because I want to shift to this window. I want your reply. SQL के क्वेरी के एंड में क्वेरी कुछ भी रहे कि सिलेक्ट, अभी तुम बैंक के मैनेजर हो, सो सिलेक्ट यूजर नेम एंड अकाउंट बैलेंस. सपोज एम्प्लॉय है, ऐसा ट्रीट करते, मैनेजर नहीं. तो सिलेक्ट यूजर नेम, अकाउंट बैलेंस, अकाउंट नंबर, पासवर्ड फ्रॉम द सो एंड सो बैंक का जो भी टेबल रहेगा, वेयर सपोज आईडी इज 1 और मैंने और लिखा, हाँ, और 1 इक्वल टू 1 ऐसा हैकर ने डाल दिया तो ना, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एंड और. तो एसक्यूएल की क्वेरी कुछ भी हो, कुछ भी हो, इन द वेयर कुछ भी कंडीशन डालो, अगर उस कंडीशन को हम और के साथ अटैच करते हैं, लेट मी ओपन अ PowerPoint so that it will be clear to you, कि अगर हम किसी भी क्वेरी को कॉन्कैटिनेट करते हैं विथ और, तो वो ऑलवेज ट्रू हो जाएगी, इवन दो यूजर का आईडी 1 रहे या ना रहे, यूजर का पासवर्ड मैच हो ना हो, यूजर का नेम, यूजर का नंबर, नथिंग इज गोइंग टू मैच, इट्स ओके बिकॉज यू आर राइटिंग और. क्योंकि एंड में कैसे रहता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लेकिन और में कैसा रहता है, एक कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाए, दैट्स इट, खत्म. तो इसका मतलब हैकर को तुम रेडीमेड वो डेटाबेस अवेलेबल करके दे रहे हो. इट इज ओपनिंग द पावर पॉइंट, ये ओपन करने दो इसे, एंड टिल दैट टाइम आई विल शो यू कि यहाँ पे ये जो आया जस्ट बाय राइटिंग 1 इक्वल टू 1, हमें हर एक जितने भी पीएचपी के अपने डेटाबेस में, डीवीडब्ल्यूए नाम का डेटाबेस हमने अभी बनाया, उस डेटाबेस में एडमिन, गॉर्डन ब्राउन, हैकमी, पैब्लो पिकासो एंड बॉब स्मिथ, ये 5 यूजर्स थे जिनका हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रिट्राइव हुआ. इज इट गेटिंग क्लियर कि एसक्यूएल इंजेक्शन को यहाँ पे इसमें हमने सिर्फ क्या दिया, ऊपर का पूरा क्वेरी देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज एट चाइल्ड लेवल ना. तो तुम्हें सिर्फ आगे तुम्हें क्या चाहिए उतना ही बताना है उसको. तो और करके 1 इक्वल टू 1 लिखोगे तो वो पूरा वाला तुम्हें फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे देगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें लिख के रखा है कि सिलेक्ट द सॉरी select the first name and the last name from users table where and user id so and so. तो हमने उसको ऐड कर दिया और 1 इक्वल टू 1. अभी मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें पूछूंगी and you are going to tell me the answers of it. And similarly you are going to tell me the other conditions which are also possible, जो possible हो सकती है. सपोज हमने लिखा select star, I want everything from यूजर्स टेबल. अभी तो वैसे नहीं लिखा था, सिलेक्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिखा था, वेयर, और एक्चुअली एक कंडीशन है, व्हाट इज दैट, वेयर नेम इज इक्वल टू, मेरा नाम डाल देते, वेयर नेम इज इक्वल टू सपोज आरती. लेकिन हमने क्या किया, इसको और अटैच कर दिया, और 1 इक्वल टू 1. तो बताओ, बिकॉज ऑफ दिस और एंड 1 इक्वल टू 1, ये हमेशा ही ट्रू रहेगा.
इवन दो अगर यूजर टेबल में नेम आरती है या नहीं है, उससे एसक्यूएल को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि और क्या कहता है, आइदर दिस कंडीशन शुड बी ट्रू और दिस कंडीशन शुड बी ट्रू, एंड वी ऑल नो दैट 1 equal to 1, it is true, that's why it's going to give you the result of that query. अभी हम क्या करते हैं, हम चेक करके देखते हैं कि टेबल और डेटाबेस कहाँ पे है एंड हाउ वी कैन एक्सेस इट। क्या किया, सिर्फ DBWM में क्रिएट और रीसेट डेटाबेस पे क्लिक किया तो वो फ्रेशली क्रिएट हुआ, इसीलिए अभी PHP माई एडमिन का पेज ओपन हुआ, दैट्स इट। नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी ये जो DBWM हमने डेटाबेस क्रिएट करके डाल दिया है XAMPP में, वो दिख रहा है, एंड उसमें रहेगा यूजर का टेबल जो अभी हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तुम्हारा काम क्या है, तो तुम्हें ना ये सब चीजें देखनी है। See here, I have clicked on the users, it's loading the data and you will be able to see कि 5 लोग हैं इसमें। इंफॉर्मेशन किन की है, यूजर आईडी 1 2 3 4 5। तो अभी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आई वॉज एबल टू रिट्राइव यूजिंग और 1 equal to 1। अभी तुम्हें क्या करना है, यू आर गोइंग टू डू सम R&D, तुम करोगे, एंड टेल मी कि तुम पासवर्ड रिट्राइव कर सकते हो क्या। होप सो आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर टू यू व्हाट यू आर सपोज टू डू।